آج کے بعد تم اس گاؤں سے لا تعلق ہو۔ میں جنگلات میں رہنے لگا، یوں میرا رات دن جنگلات میں ہی گزرتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ کسی نے مجھے بائبل مقدس دی۔ میں جنگل میں بائبل مقدس پڑھتا اور دعا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں اکیلا نہ رہا۔ خدا نے اپنے کلام کے ذریعہ میری رہنمائی کی اور میں نے اس کے حضور دعا کی۔ ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ میرا باپ چھری لے کر اندر آیا اور مجھے مار ڈالنا چاہتا تھا۔ تب کسی نے مجھے جگا دیا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بہت سے مغربی لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے والدین آپ کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ ایڈو کی ایسی ہی داستان ہے۔ اس کی داستان کو سمجھنے کے لیے اس کے معاشرے کو جاننا ضروری ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ توگو کا ملک کہاں ہے۔ توگو مغربی افریقہ میں چھوٹا سا ملک ہے۔ بنین کے ملک کی سرحد پر ہے اور اس کے جنوب مغرب میں بحر الکاہل بھی ہے۔ اس کا دارالخلافہ لومے ساحل سمندر پر واقع ہے۔ دنیا میں ایسے پجاریوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ غربت، مفلسی اور قحط ان لوگوں کا روزمرہ کا معمول ہے۔ ایڈو کے والد جیسے پجاری ان چھوٹے چھوٹے گاؤں کا کنٹرول سنبھالے ہیں اور اکثر وہ اس اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ایڈو کی والدہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کی کئی بیٹیاں تھیں لیکن ایڈو اس کا واحد بیٹا تھا۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، لہٰذا وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ کیونکہ میرے باپ کی 2 بیویاں تھیں اور پہلی بیوی کے 3 بیٹے تھے اور میری ماں کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، لہٰذا میری ماں میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ مجھے ایک بڑے پجاری کے پاس لے گئی کہ مجھے اس سے کوئی خاص طاقت ملے۔ میں اپنے باپ سے پیار کرتا تھا۔ میں اپنی ماں اور باپ دونوں سے پیار کرتا تھا۔ ایڈو اپنے باپ سے پیار کرتا تھا لیکن اس سے بہت ڈرتا تھا اور یہ وہاں کا معمول تھا۔ میرے گاؤں اور میرے قبیلہ کا ہر آدمی میرے باپ سے ڈرتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر کوئی ایسا کام کیا جو اچھا نہیں تو وہ برا حال کر دے گا۔ اگر کوئی اس کے پاس کوئی قوت پانے کے لیے آتا تاکہ وہ آپ کے ساتھ برا کرے تو ایسا ہو سکتا تھا، جس وجہ سے ہر کوئی میرے باپ سے ڈرتا تھا۔ ایڈو کو اس کے باپ کی طرف سے پجاری رہنما بننے کی تربیت ملی اور یوں وہ دیگر پجاریوں کی طرح عملیات کرنا شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے لیکن وہ لڑکی آپ سے شادی کے لیے تیار نہ ہوتی تو میرا باپ چڑھاوے چڑھاتا اور یوں وہ لڑکی آپ کے گھر آ کر آپ سے زبردستی شادی کر لیتی، اور اگر وہ انکار کرتی تو میرا باپ اس کو مار بھی دیتا تھا۔ کچھ عجیب سا ہوا۔ ہمارے گاؤں میں میرا ایک بہت ہی قریبی دوست تھا اور ایک دن وہ لڑکا مر گیا تو میرے باپ نے اعلانیہ طور پر اقرار کیا کہ میں نے اسے مارا ہے۔ میں اس بات کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ لہٰذا میں نے کہا کہ اگر میرا باپ میرے دوست کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے تو پھر میرے باپ کی طرح کا پجاری رہنما بننا اچھا نہیں۔ لہٰذا جو میرا باپ چاہتا تھا کہ میں بڑا ہو کر اس کا مقام حاصل کروں، وہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں تھا۔ ایڈو نے تعلیم جاری رکھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے باپ کی مانند بنوں، لیکن وہ اس کا اظہار بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے لگا، لیکن ایک دن جب اس کے ایک استاد نے یسوع کے بارے میں بات کی تو ایڈو بہت غصہ ہوا۔ میں اکثر اس سے کہتا کہ کیا آپ کو ہمیں پڑھانے کے لیے نہیں بھیجا جاتا، یسوع مسیح کے بارے میں بات کرنے کو نہیں؟ اگر آپ آئندہ ایسا کریں گے تو میں آپ کو مار دوں گا، اور اگر میں ایسا نہ کر پایا تو آپ کو مارنے کے لیے آپ کا نام اپنے باپ کو دوں گا۔ ایڈو کی ان دھمکیوں کی وجہ سے استاد خاموش نہیں ہوا، بلکہ اتوار کی صبح کو وہی استاد سارے گاؤں میں گیا تاکہ سب لوگوں کو چرچ آنے کی دعوت دے۔ یہ کام بہت ہی خطرناک تھا اور اب کی بار ایڈو نے سوچا کہ بس کافی ہو گیا ہے۔ وہ میرے گاؤں میں آیا اور لوگوں میں آ کر زور زور سے کہنے لگا کہ یسوع آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کے لیے مر گیا
अगर आप उस पर ईमान लाए तो फिर कुर्बानियों की जरूरत नहीं। मैंने कहा नहीं, तुम झूठ बोलते हो, ये मजाक है। किसी ने कहा कि उस्ताद अभी गांव में ही है। मैंने कहा कि उस्ताद हमारे गांव में है। मैं जो कुछ भी खा पी सकता था खाया, जो कुछ उठा सकता था उठाया, ताकि मेरा तहफ़्फ़ुज़ हो और जाकर उससे ये उस्ताद अपनी जान खतरे में डालकर एडो के गांव में आया, क्योंकि एडो अगरचे अभी एक नौजवान लड़का था, लेकिन उसका बाप उस सारे इलाके का चौधरी था, जिस सबब से एडो उसको मार डालना चाहता। अगर खुदावंद एडो के दिल को ना छूता और उससे कलाम ना करता तो गालिबन ये शख्स संसार हो जाता। एडो लड़ने के लिए तैयार था। उसने मंसूबा बनाया हुआ था कि अगर ये मेरी तरफ आएगा तो मैं इसको धमकाऊंगा और शायद मार भी दूंगा। लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो कुछ अजीब सा वाकया हुआ। तब मैं उस मुकाम पर पहुंच गया और पहला कदम उठाया। मैं अपने सर से लेकर पांव तक ताजगी सी महसूस करने लगा और मुझे बड़ी वाज़े आवाज सुनाई दी, ये शख्स मेरी हिफाजत में है। तेरी ताकत से कहीं ज्यादा वो मेरी हिफाजत में है। यहां तक कि तेरे दादा और बाप में भी ऐसी ताकत नहीं। एडो बहुत ही जज्बाती आदमी था और शायद रूहुल कुदस ने उसको वैसे ही अपने काबू में कर लिया जैसा पौलुस को मुकाशफा हुआ और यीशु ने उसको रोका। और मुमकिन है कि एडो ऐसी हालत में हुआ हो कि जैसे पहले कभी नहीं हुआ। एडो चाहता था कि अपने उस्ताद की तरह कुव्वत हासिल करे। एडो को दावत दी गई कि उसके उस्ताद के घर में बाइबल स्टडी की जमायत है और तुम उसमें आओ। उसके उस्ताद ने उसको बताया कि जिस कुव्वत को तुम हासिल करना चाहते हो वो यीशु के पास है। लिहाजा एडो ने दुआ की और दुआ के बाद एक इनकलाब रोनमा हुआ। मैंने खुदा से यीशु के नाम से बात करना शुरू की। जब मैंने कहा आमीन तो यूं लगा कि जैसे मुझ पर से कोई जुआ टूट गया। यूं लगता है कि जैसे एडो पर अबर बरसा है, क्योंकि ये कोई ऐसी कुव्वत थी जो एडो की ताकत से ज्यादा थी। क्योंकि एडो ऐसा आदमी था जो दूसरों की ताकत को ललकारता था। ये उसकी फितरत थी। अगर घर के 10 अफराद होते तो आपके 10 बुत होते। मैंने अपना बुत तोड़ दिया और जो कुछ भी मेरा था उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जला दिया। एडो एक बड़ा जुर्म कर रहा था। उसकी इस हरकत के सबब से गांव के हर शख्स को धचका लगा। उसको कहा गया था कि वो इस नए अकीदे का इनकार करे। इस जुर्म के सबब से उसे गिरफ्तार किया गया। बेशुमार लोग जमा हो गए, 500 के करीब लोग थे और दूसरे गांव से भी लोग ये देखने के लिए आए कि क्या हुआ। और हर कोई यही कह रहा था कि एडो, क्या तुम अपने इस नए ईमान के मुताबिक चलना चाहते हो? मैं जानता था कि मेरा जवाब वही है। मैंने कहा कि जी हाँ, मैं हमेशा इस शख्स की पैरवी करूंगा। मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। हर कोई हसद से भर गया और मुझे कहने लगा कि आज से तुम इस गांव से लाताल्लुक हो। अफ्रीका में जो हमारा कबीला था उसमें यह बहुत ही घिनौनी बात थी कि तुम इस गांव से लाताल्लुक हो। अब से हम तुझे गांव में से किसी शख्स को सलाम तक नहीं करने देंगे। इस गांव में किसी भी शख्स के सामने रुकना नहीं। और इस गांव में तुम तो क्या, अब हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। एडो को गांव से निकाल दिया गया और वहां से लाताल्लुक हो गया। एक रात एडो अपने घर सोने आया। जब उसके बाप ने सुना कि एडो वापस आ गया तो उसने अपने बेटे को मार डालने का मंसूबा बनाया। एडो वहां से भागा और गांव की तरफ वापसी भी उसके लिए खतरा था। यूं एडो अपने उस्ताद के पास गया। उसने उसे रहने के लिए जगह दी और असेंबलीज ऑफ गॉड बाइबल कॉलेज में दाखिला भी दिलवाया। वो कॉलेज जाने लगा, लेकिन अपनी माँ को हफ्ते में सिर्फ एक ही बार देखा करता था। वो हमेशा रोती रहती। वो इसलिए रोती थी कि शायद मेरे बेटे को उसका बाप कहीं कत्ल न कर दे, क्योंकि मेरा बाप ऐसा कर सकता था। अगर छुरी या पिस्तौल से नहीं तो बुतों की ताकत से वो ऐसा कर सकता था। एडो 4 साल अपने उस्ताद के साथ रहा। उसको इल्म अलहियात की तरबियत दी गई। घर बदर होने के 4 साल बाद एडो वापस आया। जिस जगह पर उसका तमस्कर उड़ाया गया था वहाँ लोग जमा हो गए, लेकिन अब की बार एडो की जबरदस्त दास्तान सुनने के लिए आए थे। मेरे कबीला के लोगों के लिए यीशु मसीह की सलीब
पर कुर्बानी के वसीला से निजात की खुशखबरी सुनना ज्यादा आसान था, क्योंकि मेरे गांव में हर किसी को हर साल जानवर लेना होता और फिर उनको सरेआम एक ऐसी जगह लाया जाता जहां हमारे बुत होते। वहां जानवर पर आप जो चाहते कहते या पढ़ते और फिर जानवर को ज़बह करते। खुशखबरी सुनाने का तरीका कोई खास नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों को खुशखबरी सुनाई गई। उसने जानवरों की कुर्बानियों की बात करते हुए कहा कि यीशु भी इसी तरह से हमारे लिए कुर्बान हुआ। जैसा आप समझते हैं कि रूहुल कुद्स की कुव्वत एडो पर आ गई और उसको नया मखलूक बनाया और एक खास खिदमत उसके सुपुर्द की। जल्द ही इस बात की तस्दीक होती है कि उसकी खुशखबरी सुनाने की ये खिदमत इन ही लोगों में थी, यानी वो जो उसके अपने ही कबीला के थे। बाइबल कॉलेज से फारिग होने के बाद एडो मुकामी कलीसिया में असिस्टेंट पास्टर बन गया। ये वो वक्त था कि बिशारती काम के लिए वो कोई बड़ा काम करना चाहता था। ये ऐसा हुआ कि मैंने अपनी मकामी कलीसिया के साथ मिलकर खुली फिजा में क्रूसेड करना शुरू कर दिए। हमने गाना से एक मुबश्शिर को दावत दी कि वो आकर इस क्रूसेड में कलाम सुनाए। ये मुबश्शिर अपनी टीम के साथ आया और कहा हमें रहने के लिए जगह और खाना चाहिए, और कहा कि मकामी टीवी में भी इस प्रोग्राम का इश्तिहार भी दें। इस सब कुछ के लिए बहुत ज्यादा पैसा दरकार था। मैं समझता हूँ कि हमें तनकीदी सा कलाम नहीं बल्कि यस्सू के बारे में बताने के लिए हर मौका से फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात सैकड़ों और हज़ारों लोग आते हैं और ये ऐसा नहीं है कि जैसे आप घर में बैठकर किसी से यीशु के बारे में बात कर रहे हों। एडो और उसकी कलीसिया ने काफी पैसा खर्च किया, लेकिन 120 पड़ोसी खानदानों में से सिर्फ चंद हजार लोग आए। एडो अफसरदा हो गया और बड़ी तादाद में लोगों तक रसाई करने का मंसूबा नाकाम हो गया। वो ये जानना चाहता था कि अब क्या किया जाए। लिहाजा मैं दुआ कर रहा था कि खुदावन, मैं अपने कलीसियाई इलाका के लोगों तक रसाई करना चाहता हूँ, मैं अब क्या करूँ? फिर खुदावन ने मुझसे कलाम किया कि इन लोगों तक रसाई का तरीका ये है कि उन तक जाया जाए। बिदारी आए हुए अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ था कि एडो ने एक ऐसी खिदमत शुरू की जिसका नाम एवरी होम फॉर क्राइस्ट था। उसके साथियों की रोया भी एडो ही की तरह थी। एवरी होम फॉर क्राइस्ट की रोया ये है कि सारी दुनिया में खुशखबरी का पैगाम पहुंचाया जाए और नए ममालिक तक रसाई करते और मुकामी कलीसियाओं के साथ मिलकर नए ईमानदारों को शागिर्द बनाते हैं। ये उसका बोझ था कि प्याकोमैन जैसे रहनुमाओं के साथ मिलकर अफ्रीका के इस छोटे से मुल्क में एक तहरीक का आगाज किया जाए। जब मैं पहली बार एडो से मिला तो उसका पहले ही से EHC से राब्ता था। ये एक छोटी सी तहरीक थी जिसमें पासबान और चंद लोग शामिल थे। बहुत जल्द एडो ने इस मिनिस्ट्री की क़ियादत संभाली और ऐसी राहें तलाश करने लगा कि सारे तोगों में कैसे रसाई की जाए। ईडो वाकई बोझ से भरा हुआ था और ऐसा शख्स था, आप उसके साथ रो भी सकते और हंस भी सकते थे। इसके साथ होने ही से आपको मालूम हो सकता था कि इंजील की वुसअत और अपने लोगों को और खुशखबरी सुनाने के लिए उसके दिल पर कितना बोझ था। मैंने एक मंसूबा पर काम करना शुरू किया कि सारे मुल्क तक रसाई की जाए। मैंने अहम मकामात का इंतखाब किया, मैं इसको ऑपरेशन कहता हूँ, ताकि इलाके के हर घर तक खुशखबरी का कलाम पहुंचे। यूं मैंने मकामी कलीसिया को तहरीक दी और हम हर शहर, हर गांव और हर घर तक पहुंचे। हर घर तक रसाई करना अकेले एडो के लिए महाल था। उसको एक टीम तैयार करना और उनको रोया में शरीक करना था। वो लूमे की तरह के कई शहरों और कलीसियाओं में जाता और लोगों को तरबियत देता कि वो साल या 2 साल तक अपनी मुलाजमतों से छुट्टियां लेकर अपनी जिंदगी वक्फ करें और रजाकाराना तौर पर जाकर टीम में शामिल हो जाएं और उनके शहरों
और इलाकों में जाएं। शुरू में एडो से पेयर ने पूछा कि खुशखबरी के सुनाने का उसे इस कदर बोझ क्यों है। एडो का सादा सा जवाब था, अक्सर वो मुझसे कहा करता था कि मेरे लोग बहुत गरीब हैं और अगर वो जहन्नुम में बगैर खुशखबरी सुने जाते हैं तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि वो अभी भी तो जहन्नुम में जिंदगी गुजारते हैं। लिहाजा यीशु ने जिस मकसद के लिए मुझे बुलाया, मुझे उसके बारे में अपने लोगों को बताना है। लिहाजा इसमें मुख्तलिफ शोबाहाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा इस काम के लिए पूरे तौर पर वक्फ किया कि घर घर, गांव गांव और बस्ती बस्ती और शहर बा शहर पहुंचे ताकि सारा मुल्क यीशु के लिए जीता जा सके। उनके पास कुदरत वाली खुशखबरी का होना जरूरी था। एडो और उसकी टीम के लोगों के पास बदरूहों और जादू टोने के असरात पर गलबा पाने का पैगाम था। आप देखते हैं कि यहाँ पर दो कुव्वतों का आमना सामना था। मसीह की कुदरत लोगों के खौफ व हरास की कुव्वत से कहीं ज्यादा अजीम है। वो ऐसी कलीसियाएं बना रहे थे ताकि नौमरीदों को संभाला जाए। EHC की मिनिस्ट्री में पहले ग्रुपों का अहम तरीन किरदार था क्योंकि उनको शागिर्दियत के अमल से गुजारना था और यूं ये खिदमत कई अशरों तक जारी रहती थी। और बाकी दुनिया की तरह तोगो में मसीह की जमातों ने कलीसियाई जमातें कायम करने में अहम तरीन किरदार अदा किया। असल में जब हम गांव में जाकर क्राइस्ट स्कूल शुरू करते हैं तो बहुत से स्कूल शुरू करते हैं। तमाम डिनोमिनेशन को दावत देते हैं कि इन क्राइस्ट स्कूलों से कलीसिया का आगाज करने के लिए एक एक क्राइस्ट स्कूल अपना लें। और ये बड़ी खुशी की बात होती है कि तंजीमें और कलीसियां मिलकर खुशखबरी की वसअत के लिए इकट्ठा काम कर सकती हैं। खुशखबरी सुनाने और एवरी होम फॉर क्राइस्ट ग्रुप शुरू करने के साथ साथ एडो ने ये तालीम देना भी शुरू कर दिया कि अफ्रीका में पाए जाने वाली बीमारियों से कैसे रोकथाम की जा सकती है। इससे हुकूमत के लिए भी दरवाजा खुल गया। मैंने तोगो की हुकूमत से बात की कि वो मुझे इजाजत दें। मैंने 30 ऐसे लोगों को तैयार किया कि सारे तोगो में जाकर गांव गांव लोगों को तालीम दें कि मलेरिया से कैसे